اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے یہ اس پہ ہماری کوتاہی ہے، میں مانتا ہوں۔ اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ان ساروں کا ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک تو ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم، جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے کیا وعدہ پورا کر دکھایا، عوام کا پیسہ لوٹنے والے چوروں کے چہرے پر پڑا نقاب الٹ ڈالا۔ تاریخ میں پہلی بار عوام کا خون پسینے والا شوگر مافیا بے نقاب شوگر اسکینڈل پر قائم انکوائری کمیشن کی فورنزک رپورٹ پبلک کر دی، جہانگیر ترین، مونس الہی شریف اور اومنی گروپ ذمہ دار قرار۔ 2017-18 کی کاسٹ آف پروڈکشن 51 روپے پر کلو ہے، جبکہ فورنزک آڈٹ کمیشن نے اس کی پرائس ڈٹرمن کی ہے 38 روپے۔ سن 2018-19 میں پرائس ڈٹرمن ہوئی وہ 52 روپے 6 پیسے ہے، جبکہ 18-19 کی جو کمیشن کی مقرر کردہ قیمت ہے وہ 40 روپے 6 پیسے ہے۔ چینی کی قیمت کھاتوں میں الگ، فورنزک رپورٹ میں الگ، انکوائری کمیشن نے شوگر مافیا کی چوریوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں پیداواری قیمت میں سے ہر سال 12 سے 13 روپے کا فرق ہوا، 1 روپے سے 5 ارب سے زائد کا فائدہ ہوتا ہے۔ ملز کے اکاؤنٹس میں بھی فراڈ کیا گیا، اداروں کو دکھانے کے لیے الگ اور سیٹ کے لیے الگ کھاتے بنائے گئے۔ سندھ اور پنجاب حکومت نے ملز کو سبسڈی بھی دی۔ شوگر مافیا سے لوٹی گئی تمام رقم نکلوائیں گے، وزیر اعظم عمران خان کا کابینہ اجلاس میں دو ٹوک اعلان۔ رپورٹ پر واجد ضیاء کو خصوصی شاباش، کہا ملک کی دولت لوٹنے والے کسی مافیا سے رعایت نہیں ہوگی، کوئی چاہے کتنا ہی میرے قریب ہو معافی نہیں ملے گی، دیگر بڑے مافیاز کو بھی بے نقاب کروں گا، خوشی ہے پوری کابینہ کرپشن کے خلاف جنگ میں میرے ساتھ ہے۔ جہانگیر ترین نے رپورٹ کو اپنے لیے بڑا دھچکا قرار دے دیا، کہتے ہیں ہمیشہ صاف شفاف کاروبار کیا ہے، 2 کھاتے نہیں رکھتا، تمام ٹیکسز ادا کیے، تمام الزامات کا جواب دوں گا۔ خاص لیگ کے مونس الہی بولے کسی شوگر مل کی مینجمنٹ میں شامل نہ ہی کسی مل کے بورڈ کا حصہ ہوں۔ رپورٹ میں اصل چینی چور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا ذکر تک نہیں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا رد عمل، کہا پریس کانفرنس میں چوری چھپانے کی تفصیل بیان کی گئی، عمران خان نے خود کو اور کابینہ کو بچانے کے لیے رپورٹ کا سرکس لگایا۔ عمران خان چاہتے ہیں رپورٹ پر ایکشن لیا جائے، وفاقی وزیر فواد چودھری کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا پہلے کسی حکومت نے ایسی رپورٹ پبلک نہیں کی، ایف آئی اے یہاں رکے گا نہیں بلکہ معاملات کو آگے بڑھائے گا۔ چینی بحران کی وجہ ایکسپورٹ نہیں سکتا تھا، چینی وافر مقدار میں موجود تھی، ایکسپورٹ کا فیصلہ درست تھا۔ خطرناک کرونا وائرس سینٹرل جیل کراچی بھی پہنچ گیا، 212 قیدیوں میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ملک میں ایک دن میں کرونا کے ریکارڈ 2193 کیسز رپورٹ، متاثرین کی تعداد 48,091 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 32 مریض جان سے گئے، اموات 1017 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں 351، سندھ میں 316 اور پنجاب میں 297 افراد لقمہ اجل بنے۔ کورونا کے معاملے پر مس رپورٹنگ نہیں بلکہ فراڈ ہوا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انکشاف، کہا لاک ڈاؤن سے فائدہ ہوا اور نرمی سے کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے، آج کے اقدامات کا نتیجہ 14 دن بعد سامنے آئے گا۔ صوبے میں اموات 336 ہو گئی، 19,924 افراد متاثر ہیں، عوام سے عید سادگی کے ساتھ گھروں پر منانے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے پروگرام وضع کرنے کا حکم، عثمان بزدار کہتے ہیں بجٹ میں صحت اور دیگر سماجی شعبوں کو اہمیت دی جائے گی۔ مستحق خاندانوں کی مالی معاونت کا سب سے بڑا پروگرام تحریک انصاف کی حکومت نے دیا ہے۔ کرونا سے جاں بحق ایم پی اے شاہین رضا کے لیے سی ایم آفس میں دعائیہ تقریب۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان حکومت کی عید سادگی سے منانے کی اپیل، مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں کورونا کے خلاف کامیابی صرف احتیاط میں ہے، گلے ملنے اور مسافے سے گریز کریں۔ لیاقت شاہوانی بولے 30% حصے میں وبا نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے وائرس پھیل سکتا ہے۔
पंजाब में SOPs को हवा में उड़ाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल, समाजी फासलों का क्लोरीन स्प्रे, मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर्स के बगैर मुसाफिर मंजिल मकसूद पर रवाना। ऑनलाइन सिस्टम में खराबी के बाद वजीर रेलवे का रिजर्वेशन ऑफिस खोलने का ऐलान। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स के औकात कार में इजाफा। वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल के मुताबिक अब से ईद तक शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। कल से बाजारात भी 24 घंटे खुले रहेंगे। ईद खरीदारी के लिए बाजारों में बला का रश, समाजी दूरी का उसूल पामाल। लाहौर हाई कोर्ट में ईद पर पार्क्स खोलने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोरोना पहले ही संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, क्या आप मुझसे बच्चों के मारने का लाइसेंस लेना चाहते हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, फैसला भी वहीं से होगा। खतरनाक कोरोना वायरस सेंट्रल जेल कराची भी पहुंच गया। 212 कैदियों में वायरस की तस्दीक हो गई। जेल के अंदर ही करंटीना कर दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट कहते हैं 1500 कैदियों के टेस्ट किए थे, मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत बात पर नाराज होने की रिवायत खत्म करे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिंध को कुछ गैर आईनी लगता है तो वजीर आजम से बात करे। टाइगर फोर्स को लेने से इनकार करके गलती की, फोर्स की जिम्मेदारियां एहसास मराकज़ और यूटिलिटी स्टोर्स पर लगाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। वफाकी बजट तश्कील देने के लिए फाइनेंस डिवीजन और मुतालिका महकमों की छुट्टियां मनसूख। मुतालिका हुक्काम को ईद पर भी शहर में रहने की हिदायत। LOC पर भारतीय फौज की सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जियां, सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं भारत LOC पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है, झूठे सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाना चाहता है। मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज की मअतली का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज को ओहदे पर बहाल कर दिया। वफाकी काबीना ने अंसर अजीज को काम से रोक दिया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं शहरी इलाकों के हुकूक 50 बरसों से सर्व किए जा रहे हैं। मुल्क को चलाने वाला कराची आज पीने के पानी को तरस रहा है। शहर को देखें तो देहात का मंजर पेश कर रहा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 151 अफसरान में एक भी उर्दू स्पीकिंग शामिल नहीं। कराची में गर्मी ने मई के महीने में जून की याद दिला दी। कराची में पारा 37 लेकिन शिद्दत 40 से ऊपर की दिखाता रहा। दीगर शहरों में सूरज ने शहरियों के पसीने निकाल दिए। महकमा मौसमियात ने कल भी मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई कर दी। में आना है मेरी मस्ती में शौर जाफिशान मेरा तखय्युल है तो शीरी है सुखन। और माह सयाह में आज न्यूज़ की रमजान ट्रांसमिशन बराने रहमत। अदाकार अली अंसारी और मिशाल खान बने आज न्यूज़ के मेहमान। उलमाए कराम की दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू। ट्रांसमिशन की अवामी मकबूलियत बरकरार। डब्ल्यू नामी मिल में जहांगीर तरीन के 21% शेयर्स हैं, जबकि खुसरो बख्तियार के भाई के मिल में भी बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। शरीफ खानदान, हमजा और हुंजा मिल्स की करप्शन की कहानी भी है, बेनकाब कर दी गई। चीनी स्कैंडल केस में बड़े बड़े नाम, बेनकाब हुए अपोजिशन और हुकूमती अरकान। चीनी बहरान से किसने कितना फायदा उठाया, रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्टा वाज़े कर दिया। मुशीर बराए इत्तेसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंकशाफ किया
कि JDW ने डबल खाते बनाए हैं, जिसमें जहांगीर तरीन के 21% शेयर्स हैं। JDW ग्रुप की जो ओनरशिप है उसमें जहांगीर खान तरीन की 21% शेयर होल्डिंग है। इसके अंदर भी डबल बुकिंग जिस तरह है, अंडर रिपोर्टेड वो सारे डिटेक्ट हुए हैं, ओवर इनवाइस कैश परचेज है। रिपोर्ट में शरीफ फैमिली की करप्शन भी बेनकाब हुई। कहा कि रमजान शुगर मिल्स शरीफ फैमिली की है, जिसके डबल खाते सामने आए हैं। ताहम इक़्तिदार जाने के बाद शरीफ फैमिली ने चोरी कम की। रमजान शुगर मिल जिसके अंदर शहबाज शरीफ सारी फैमिली की शेयर होल्डिंग है, इन्होंने 2017-18 में 45% केन जो है वो ऑफ द बुक प्रोक्योर किया है। इक़्तिदार जाने के बाद उन्होंने कहा चोरी थोड़ी कम कर दें, तो 787 मिलियन 78 करोड़ रुपए का किस जो है वो केन कम शो किया है, शुगर केन। रिपोर्ट में ओमनी ग्रुप की करप्शन का भी जिक्र हुआ। कहा मुराद अली शाह ने ओमनी ग्रुप को फायदा देने के लिए सब्सिडी दी। 9.3 अरब की सब्सिडी सिंध गवर्नमेंट ने दी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट किए बगैर सब्सिडी दी गई। मुराद अली शाह साहब उन्होंने वो तो सब्सिडी कमीशन ने लिख दिया है कि सरहन सिर्फ एक ग्रुप ओमनी ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए वो सारी सब्सिडी दी गई। शहजाद अकबर ने भी बताया कि अलमुइस शुगर मिल्स का भी डबल खाता खुला। गरीब किसानों से 13 अरब रुपए कमाए गए हैं। हमजा और हुंजा मिल्स की बेज़ाब्तगियां भी पेश की। हमजा मिल्स उनके भी अंडरपेड है फार्मर्स को तकरीबन 820 मिलियन 17-18 में। हुंजा के वाले हैं, उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी इन्हांस की हुई है, 3500 TCDs क्रशिंग कैपेसिटी विदाउट एनी अप्रूवल। और अंडरपेड हैं फार्मर्स को एज लो एज 140 रुपये पर माउंट। रिपोर्ट में खुसरो बख्तियार से मुतालिक वजाहत दी गई। कहा गया कि खुसरो बख्तियार की कोई शुगर मिल नहीं है। शुगर मिल खुसरो बख्तियार के भाई की है। उनके खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। खुसरो बख्तियार साहब की कोई मिल नहीं है, उनके भाई की है। कल अगर मिसाल के तौर पे इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में ये पता चलता है नहीं ये उमर शहरियार साहब का नहीं है, ये असल में इनका है, तो फिर ज़रूर बात होती है। शहजाद अकबर ने वाज़े किया कि तमाम मुआविनीन और मुशीर अपने असासे जाहिर करेंगे। जिनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी वो खुद पेश होगा। रिपोर्ट पर जो चाहे वो अदालत जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर इंक्वायरी कमीशन को शाबाशी दी है और कहा है कि मुल्क की दौलत लूटने वाले किसी माफिया से रियायत नहीं होगी। चाहे कोई कितना ही उनके करीब हो, किसी को भी माफी नहीं मिलेगी। मजीद बताएंगे आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। तारिक चौधरी बताएगा इस हवाले से मजीद क्या कहना था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। आज ये फाके के बिना का जो खसूसी इजलास था, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी मुनज़्ज़म और अच्छी रिपोर्ट तैयार करने पर इंक्वायरी कमीशन को और उसके सरबराह को शाबाश दी है। और ये कहा गया है कि ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें कोई अभाम नहीं है और तमाम पहलुओं को इसमें मलूज़ खाता रखा गया है। काबीना के इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने जो उनकी काबीना के अरकान हैं उनको भी अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी काबीना जो है वो करप्शन के खिलाफ जंग में मेरे साथ है और पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कोई पाकिस्तान का खजाना लूटेगा, अवाम की दौलत को लूटेगा, उसको किसी किस्म की रूरायत नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मैं जब से हुकूमत में आया तब से मुझे सही तरह अंदाजा हुआ कि इस मुल्क में कैसे कैसे माफिया हैं और किस तरह वो सरगर्म रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मामला उनके सामने आएगा उस मामले की तहकीकात होंगी और कोई भी